नमस्कार। हम देख रहे हैं AKTK और वीडियो का टाइटल है इंडियन नेशनल फैसिस्ट कांग्रेस क्वेश्चन मार्क। So let's start with part 2 of this video without wasting any time. I'll give link to the original video in the description. Go and check it out. Come and react with me. Give me a thumbs up. Subscribe to the channel. Let's start. बीते दिनों में डिक्टेटरशिप और फासिज्म पर बहुत बहस चली है। ये बहस बड़े से बड़े राजनीतिक दल, पत्रकार और यूट्यूबर सबने की है। Democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. सबने इसे अपने अपने ढंग से वर्णित किया है, पर असली फासिज्म आपको अगले 3 अध्यायों में देखने को मिलेगा। रचित कौशिक, सब लोकतंत्र यूट्यूब चैनल। Well, that is a very serious allegation. You are a working member of Indian institutions, and you are accusing that all of Indian institutions are under RSS control. पहली बात तो it is an insult to the Indian institutions. It is an insult to the Indian judiciary. And it is misinformation and defamation of RSS itself, because RSS does not involve itself in politics, like not in a very क्या बोलते प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है. They have their ideology, they work for their ideology on the ground, on the grassroots level, and some of their ideologies happen to intersect with BJP, and that is why a lot of leaders RSS has produced that have joined BJP. But it doesn't necessarily mean that BJP itself is completely controlled by RSS, which would mean that RSS controls the country. And if it does, then present some evidence. So I don't know who the reporter was there. I think I have watched that interview. Another clip of that interview had gone very viral, where the reporter asks Rahul Gandhi a very softball question, and Rahul Gandhi just goes silent for a minute, and then his supporters start clapping. So I think it is from the same interview. Anyway, I don't expect that journalist to ask any counter question to present the evidence, but people should ask कि how can Rahul Gandhi make such false claims, especially because he's an MP, right? Even though he lost from Amethi in that election, but he was still an MP from Wayanad. So how can he, a sitting member of parliament, talk like this? चलाते थे। एक दिन उनका चैनल बंद हो गया। उनकी वीडियो से भाजपा को और उनके नैरेटिव को ही बल मिलता था। चैनल बंद होने पर भी भाजपा ने कुछ नहीं बोला। क्या दो कौड़ी की डिक्टेटरशिप थी। ऐसे ही स्ट्रिंग चैनल, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यह चैनल तो साउथ का था, जहां भाजपा को सबसे अधिक अपने नैरेटिव का विस्तार की आवश्यकता थी, वो भी उड़ा दिया गया। भाजपा ने कुछ नहीं बोला, जबकि स्ट्रिंग ने पीएमओ तक को टैग करके कहा था कि यह वीडियो उनकी अंतिम वीडियो हो सकती है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। ये दोनों एग्जाम्पल एक और दिखा रहे हैं कि भाजपा को अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने वाले लोगों की कुछ नहीं पड़ी, और दूसरी ओर यह भी बता रहे हैं कि It is very true. Like the way the left ecosystem depends on YouTubers, जैसे ध्रुव राठी की वीडियो मल्टीपल बार शेयर करी जाती है ऑन वेरी ऑफिशियल हैंडल्स, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री की वीडियोस शेयर करी जाती है, अमिसार की वीडियोस एंड सो मेनी अदर पीपल। अभिसार, आई थिंक, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। एनीवे, जिस तरह से इंडिया अलायंस शेयर करती है अपनी लेफ्ट विंग इकोसिस्टम की वीडियोस, आई हैव नेवर सीन बीजेपी डूइंग सो। They don't support them in any way. They appear on podcast, but that's it. That is the extent of their engagement with social media or YouTubers, per se. So, and which raises the questions, what is the incentive of YouTubers? Because all of this content is organic. That I agree with, because people are making it out of their own free will because they want to support a certain narrative. But what incentive do they have to risk their lives, to risk their freedom, if the government of their country is not willing to stand up with them? String के केस में I think he made video against certain billionaire, maybe George Soros or maybe Bill Gates,
and then his channel was slowly wiped out. Now he's only active on Twitter. So that speaks volumes. The government should have stood up for his right to freedom of expression, but it didn't. भाजपा कुछ भी हो सकती है पर डिक्टेटर तो नहीं। ये चैनल्स क्यों बंद कराए गए? स्ट्रिंग ने वीडियो बनाई जिसमें उसने ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर कर दी थी उसी के संदर्भ में वीडियो थी, जिसमें उसने कहा कि इन जैसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। केवल ये लाइन बोलने के कारण पूरा चैनल डिलीट। आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी ने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए वो डिक्टेटर है। आपने 2 पूरे चैनल्स Maybe I was wrong. Maybe that is the real reason. If there is any other hidden story, then please let me know. बंद करा दिए। क्या यह डिक्टेटरशिप नहीं है? फिर रचित कौशिक, उनकी एक वीडियो हर थोड़े दिनों में ट्विटर पर वायरल होती रहती थी। वीडियो केजरीवाल के शीश महल को एक्सपोज कर रही थी। केजरीवाल का शीश महल याद है, जिसमें 80 लाख के पर्दे लगे हैं? उसी में जिम वाली 4 ट्रेडमिल मशीनें भी लगी हैं। 15,000 से लेकर 15 लाख तक की ट्रेडमिल आपको अमेजन पर मिल जाएगी, लेकिन उससे कमाई तो होती नहीं। तो सर जी ने ट्रेडमिल किराए पर लेने की सोची। 4 ट्रेडमिल का 1 महीने का किराया सोचो कितना होगा? 5,000, 10,000, 15,000? जी नहीं, 10 लाख। ये 10 लाख रुपए महीने का किराया दिल्ली सरकार देती है, और ये ट्रेडमिल है एक कंपनी की जिसके मालिक हैं पुलकित केजरीवाल। घर बैठे अपने ही घर में ट्रेडमिल किराए पर दो और 10 लाख रुपए महीना कमाओ, क्योंकि ईमानदार सरकार। लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उस वीडियो के बनने के कई महीनों के बाद एक अनर्गल आरोप में फंसाकर पंजाब पुलिस रचित को मुजफ्फरनगर से उठाकर ले जाती है। भाजपा फिर से कुछ नहीं कह पाती और कर पाती, पर भाजपा का कुछ ना कहना डिक्टेटरशिप है, और केजरीवाल की पुलिस का एक पत्रकार को यूं उठा ले जाना डिक्टेटरशिप नहीं है। और ये केजरीवाल के लिए कुछ नया थोड़ी है। इससे पहले तजिंदर बग्गा को केजरीवाल की पंजाब पुलिस ने उठा लिया था, पर बग्गा जी तो भाजपा के मेंबर थे, तो भाजपा ने तुरंत संज्ञान लिया। रचित मात्र एक पत्रकार था, वो भी यूट्यूब पर। इसके अतिरिक्त नवभारत टाइम्स की एक पत्रकार Tajinder Bagga already also raised his voice against Arundhati Roy in one event where she called Kashmir not an integral part of India. किशोर, उनको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था मई 2023 में। क्यों? ये कहकर कि भावना की जो कार है वो SC/ST समुदाय के एक व्यक्ति से भिड़ गई है, तो भावना पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। भावना एक्चुअली में वो पत्रकार थी। I thought SC/ST Act तब लगता था when it is a hate crime, right? When you are intentionally calling someone a caste slur. ऐसे एक्सीडेंट में कैसे SC/ST Act लग गया just because the guy happened to be from SC/ST community? कुछ भी। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर करोड़ों रुपए खर्च होने की बात को सामने लाया था, जो एक्चुअली में फिर शीश महल की पूरी स्टोरी बनाने के कारण बनी थी, और मीडिया पर कई दिनों तक वो छाया रहा था। जिस दिन भावना अरेस्ट हुई उस दिन भी वो मोहल्ला क्लिनिक को कवर करने जा रही थी। पर ये सब केवल केजरीवाल ने थोड़ी किया है। भीखू मात्रे, एक ट्विटर हैंडल, उसे एक फेक मोहल्ला क्लिनिक से याद आया, I lived in Delhi for like 3 months last year, and right in front of my flat building there was one मोहल्ला clinic, और उसमें only the front gate used to be open every day because I think it was part of a larger house. So of course the front gate has to be open. On the first floor there was Mohalla clinic. On the second and third floor people used to live. So there was no one ever in that Mohalla clinic. And one day an actual patient came for medicine. Right? Someone must have told her कि पैसे नहीं है, ठीक है यहाँ पे एक Mohalla clinic है, चली जाओ वहाँ पे. And she came and she was asking around कि कब खुलता है ये Mohalla clinic, इसमें कब बैठेंगे लोग. Because she came under the business hours and there was no one there, and there was never anyone there. She just happened to come because no one else comes, and I saw that Mohalla clinic every day and there was no one there. So that is the state of Mohalla clinics, the so-called Delhi model. न्यूज़ फैलाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया कर्नाटका पुलिस के द्वारा। फैक्ट हंट, एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उस पर भी FIR रजिस्टर कर दी गई। और ये भी कहाँ हुआ? कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, और अब अजीत भारती पर भी कर्नाटका में ही FIR की गई। मार्च 2023 में बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप नाम के एक यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया था, जो कि अब भाजपा के मेंबर हैं, और वहां पर उस समय
ऑपोजिशन की सरकार थी। ये कहकर उन्हें अरेस्ट किया गया कि मनीष कश्यप ने एक फर्जी वीडियो डाला है जिसमें बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडु में आक्रमण हो रहे हैं ऐसा बताया गया है। मनीष कश्यप को लगभग 9 महीने तक जेल में रखा गया और अलग अलग जेलों में घुमाया गया और फाइनली मद्रास हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप को बेल दी। मनीष कश्यप के केस में भी भाजपा इनिशियली चुप ही थी पर बाद में संज्ञान लिया गया। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट किया गया जिसका बेसिक रीजन था तमिलनाडु की सत्ता पर जो पार्टी है उसकी विचारधारा से उनका अलग सोचना। इनमें से एक का उदाहरण मैं दे देता हूँ। तमिलनाडु में एक बिरयानी की दुकान पर एक कस्टमर ने हलाल सर्टिफिकेट पर प्रश्न किया और इसके बाद सैकड़ों मुस्लिम संप्रदाय के लोग दुकान के बाहर आ गए। तिरुपति कन्नन ने इसे रिपोर्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और उसे केवल ये करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। बस कुछ इसी तरीके से फासिज्म से लड़ने वाली ऑपोजिशन ने फासिज्म से लड़ाई की है। जो कोई उनके अगेंस्ट बोले उसे जेल में डाल दो या उसका चैनल ही बंद करा दो। अब इसके आगे कांग्रेस का वो फासिज्म देखते हैं जो उन्होंने तब किया था जब वो Well, that is not the actual definition of fascism, but I understand the overlapping aspects of fascism and dictatorship. Because fascism maybe होता है कि when someone tries to call out when someone has some dissenting views which according to you do not align with the national interest or the interest of the sovereign body, then they take action against you. So that is also like a certain dictatorial kind of thinking. So I understand that they have overlapping factors and that is why it is mistaken very often. वो देश की सत्ता में थे, सेंटर में थे। अगले अध्याय देखिए, आपको अरुंधति रॉय के अरेस्ट को फासिज्म कहकर बेचा जा रहा है। 2010 के एक बयान के लिए कानून लगाया गया है यूएपीए का, जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात करने वाले लोगों से निपटता है। बीजेपी से प्रश्न यह है कि भाई 10 साल बाद काहे जागे हो बे, और इसे फासिज्म कहने वाले फुद्दुओं से प्रश्न है कि बेटा तुम फासिज्म पर ज्ञान मत दो, क्योंकि जिसे तुम फासिज्म कह कर रो रहे हो ना, उसकी हिस्ट्री तुम झेल नहीं पाओगे। 29 मई 1951 भारत में एक गर्म दिन था। संसद के भीतर का तापमान उससे भी अधिक गर्म था। सांसद टेबल पीटकर और चीख चिल्लाकर एक दूसरे को रोक रहे थे, क्योंकि वाणी और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता पर कुठाराघात होने वाला था। 2 हफ्तों से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान के उस आर्टिकल को चेंज करने की बात कर रहे थे जो भारत को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता था, और जिसे हासिल किए हुए अभी भारत को केवल 46 महीने हुए थे। नेहरू जी संसद में And that sounds very dramatic, the way he is forming sentences. और भाषण देते हैं जिसमें कहा जाता है कि दुनिया में हर प्रकार की आज़ादी को कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये बात प्रेस की आज़ादी को लेकर कही गई थी। आगे नेहरू ने कहा कि प्रेस को मानसिक संतुलन की आवश्यकता है जो वो खो चुका है। आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गांधीवादी लीडर्स नेहरू के विरुद्ध खड़े हो गए थे, पर 18 जून 1951 को फर्स्ट अमेंडमेंट को संसद में पास कर दिया गया, जिसने भारत की आवाज को बंद कर दिया। क्या था इस अमेंडमेंट में? संविधान के इस अमेंडमेंट से पहले पब्लिक सेफ्टी लॉज जैसे कुछ कानूनों का प्रयोग करके प्रेस का मुंह बंद कर दिया जाता था, परंतु ये लॉज संविधान का अंग नहीं होते थे और कोर्ट में इनके विरुद्ध लड़ा जा सकता था। अब नेहरू ने इसे संविधान का अंग बना दिया था। अब केवल सरकार को बस ये सोचना था कि कोई व्यक्ति या मीडिया हाउस राज्य की अखंडता के विरुद्ध बोल रहा है और उसे दंड मिल सकता था। क्यों लाया गया था ये अमेंडमेंट? उस समय के पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदू रेफ्यूजीज हिंसा को झेलने के बाद भारत में प्रवेश कर रहे थे, और दूसरी ओर मद्रास जैसे स्थानों पर वामपंथी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। जब प्रेस ने ऐसे विषयों पर खुल के लिखना चालू किया तो प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया। जब The irony is, अमेरिका में the First Amendment talks about giving freedom of speech, और इंडिया में the First Amendment is about taking the freedom of speech. प्रेस कोर्ट गई तो कोर्ट ने संविधान की दलील देते हुए प्रेस का मुंह पुनः खोल दिया, तो बस नेहरू जी ने संविधान ही बदल दिया। और इसका फायदा उठाते हुए नेहरू जी ने पता है क्या क्या किया? मजरू सुल्तानपुरी ने अपनी कविता में नेहरू को हिटलर का चेला कह दिया था, तो वो बेचारा 2 साल जेल में काट कर आया। इस चक्कर में आज मोदी को हर गली में बैठा कुत्ता हिटलर कह रहा है और ग्रो कर रहा है। दर्जनों किताबें प्रतिबंधित की गई, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ सकती ये तक कह दिया गया। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की चुनी हुई सरकार तक गिरा दी गई। कितनी फिल्में, कितने थिएटर्स के नाटक प्रतिबंधित कर दिए गए, इसकी पूरी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर चलिए, क्या आपको यह पता है कि इस देश में इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी?
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि इंदिरा गांधी चुनावों में धांधली करके जीती हैं। इस कारण से वो किसी भी ऐसे पद पर नहीं रह सकती जिसे जनता स्वयं चुनती है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर नहीं रह सकती थी और इस निर्णय के केवल 13 दिन बाद यानी कि 25 जून को देश में इमरजेंसी लगा दी गई, पूरे लोकतंत्र को ताक में रखकर। और एग्जैक्टली इसी प्रकार का व्यवहार इस पूरे इकोसिस्टम का आज तक है। उमर खालिद, शारजिल इमाम, अरुंधति रॉय जैसे देश तोड़ू बयानवीर लोगों पर कानून की धाराएं इन्हें पसंद नहीं आएंगी, पर अजीत भारती पर हुई एफआईआर इन्हें जी स्पॉट पर हुए लैंगिक टकराव से उत्पन्न चरमोत्कर्ष का मजा दे देती है। और यही असली फासिज्म है और एक परिवार के अराउंड घूमता है। कैसे ये फासिज्म भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर खा चुका है, वो आगे देखते हैं। फासिज्म की असली कहानी जानना चाहते हो तो मैं भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की कहानियां सुनाता हूं। वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और यह मौका उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात मिलता है। गांधी परिवार से सोनिया गांधी उस समय तक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती हैं और राहुल और प्रियंका दोनों बहुत ही छोटे होते हैं, नहीं तो यह मौका पीवी नरसिम्हा राव को नहीं मिलता। उस समय राजीव गांधी की मृत्यु की जांच भी चल रही थी, लेकिन सोनिया गांधी को उस जांच की स्पीड से प्रॉब्लम थी। इस विषय पर वो राव को अर्थात देश के प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाकर इंसल्ट किया करती थी। मई 1995 की एक रात को पीवी नरसिम्हा राव अपने कैबिनेट के मिनिस्टर नटवर सिंह को फोन करते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। बोलते हैं कि आज फिर से सोनिया गांधी ने मुझे इंसल्ट किया। फिर अगस्त 1995 को सोनिया गांधी एक स्पीच देती हैं और स्पीच में कहती हैं कि यदि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के केस में इतना डिले होगा तो आम व्यक्ति को न्याय मिलने में कितना समय लगेगा। और ऐसा ना उस गांधी परिवार की बहू बोल रही थी जिसकी सास ने शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराई और उनकी मृत्यु को हार्ट अटैक जब खुद पे आती है तब पता चलता है। क्लियर कर दिया। क्या शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे या गांधी परिवार से ना होने के कारण उनके जीवन की कोई महत्ता ही नहीं थी? अब कुछ लोग आके ये कह सकते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु के अराउंड तो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज बनाई गई थी, उसकी क्या ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो राजीव गांधी की मृत्यु पर सोनिया गांधी को लगता था कि LTTE ने राजीव गांधी को नहीं मारा है, कोई दूसरी एजेंसी है जिसने LTTE के थ्रू ये काम कराया है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी नहीं है? और LTT, though, for the people who don't know, are like a separatist group which is functional in Sri Lanka, and also it entails a lot of Santhali people. Maybe I'm pronouncing it wrong, but those are basically the Sri Lankan people, and also some Tamil speaking people. So when Rajiv Gandhi was killed, it was done via suicide bombing. And most of them were Sri Lankan nationals, except for one guy who supplied the batteries. So some of them have died in jail, but recently some of them got out of jail. They were not hanged. They were given a punishment of life imprisonment, but then later on they were given like mercy, freedom. और इस पर तो जांच हो भी रही थी, पर उसकी स्पीड भी सोनिया गांधी के अनुसार होनी चाहिए। नहीं तो सोनिया जी सबके बीच में जाकर बोलेंगी कि जब तक राव प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक राजीव को इंसाफ नहीं मिल सकता। नटवर सिंह अपनी डायरी में लिखते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उनके घर रात के 9 बज रहे थे और वो बहुत ही एजिटेटेड थे। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने उन्हें एक लेटर भेजा और पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। राव आगे कहते हैं कि सोनिया क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं, मैं अब और अधिक उन्हें नहीं झेल सकता। तो नटवर सिंह उन्हें परामर्श देते हैं कि एक बार जाके उनसे मिल लें। तो राव कहते हैं कितनी बार मिलूं? अब सोनिया का जो एटीट्यूड है ना, उससे मेरी हेल्थ खराब हो रही है, अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से परे बात पहुंच चुकी है और कितनी बार वो मुझे इंसल्ट करना चाहती हैं, कितनी बार मुझे इंसल्ट झेलनी पड़ेगी। ये वाक्य एक प्रधानमंत्री के थे। एक प्रधानमंत्री को आप इतना इंसल्ट कर रही हो, वो भी तब जब आप किसी पद पर नहीं हो। पर यह फासिज्म नहीं है और आपका द्वेष उनके जीवित रहने तक सीमित नहीं रहा। उनकी मृत्यु पर आपने जो किया वो जघन्य अपराध है और इस बात का द्योतक है कि भारत ने फासिज्म की पराकाष्ठा देखी हुई है। पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई दिसंबर 2004 में और उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के हेडक्वार्टर लाया गया, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के हर बड़े नेता का लाया जाता रहा है। पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के गेट नहीं खोले गए और राव का पार्थिव शरीर बाहर ही रखा रहा।
ये आप देखिए। In 2004 December, when Narasimha Rao died, there's a real sense from your book that Sonia Gandhi got her revenge. You were General Secretary and you saw how Narasimha Rao's body was treated by Congress, and Sonia by then was Congress President. This is what you write. His body was not even let into the AICC compound. Instead, the gun carriage carrying the former Prime Minister and Congress President was parked on the pavement outside the gate, with chairs lined for party leaders outside the gate. It's a horrifying way of treating a former party president and prime minister. Whatever the differences, he was the prime minister. I mean, he had been the prime minister, he had been Congress president, he had been chief minister, he had been party general secretary. You know, and he had done a wonderful job, whatever you may say, wherever he worked. कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव के He was the one who brought about the economic liberalization with Dr. Manmohan Singh, so which catapulted the country's economy. दाह संस्कार So तक in a sense, he corrected the mistakes of Indira Gandhi. I'm not sure which Gandhi, but whoever put India on a socialist path, he corrected the mistakes of those people. को दिल्ली में नहीं होने दिया, जबकि सभी प्रधानमंत्रियों की समाधि दिल्ली में है। उनके पार्थिव शरीर को आंध्र प्रदेश भेजा गया। उन्हें अंतिम विदाई देने जो लोग आए थे उनके लिए कारपेट तक नहीं बिछाए गए और राव के पार्थिव शरीर पर फूल तक नहीं चढ़ाए गए। और ऐसा ही कुछ हाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी हुआ और रिमोट कंट्रोल द्वारा सरकार चलाई गई। ये आज का आर्टिकल नहीं है, 2005 का है। रूस में पुतिन से मीटिंग करनी होती थी तो सोनिया गांधी रिलायंस के प्लेन में बैठकर पहुंच जाती थी। कौन सा पद था भाई उनके पास, आज तक नहीं पता। देश में कहीं भी झंडा दिखाना हो सोनिया गांधी उसे स्वयं करती थी। क्यों? प्रधानमंत्री का काम था पर वो नहीं कर सकते थे। सोनिया गांधी ने एनएसए क्यों बनाई जब प्रधानमंत्री ने अपनी एडवाइजरी समिति बना ली थी? तो प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए अध्यादेश राहुल गांधी सबके बीच में फाड़ रहे थे। बस ऐसे ही तो फासिज्म से लड़ रहे थे ये लोग। तो आपने अपने से ऊपर प्रधानमंत्री तक को नहीं माना और आप फासिज्म की बात करते हो। पर चलिए इन सभी समस्याओं से इतर समाधानों की ओर चलते हैं अगले अध्याय में। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है? कांग्रेस द्वारा शासित एक राज्य में एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर पर एफआईआर होती है और पूरा इकोसिस्टम उसे अरेस्ट करवाने के लिए आहें भरने लगता है, पर कांग्रेस फासिस्ट नहीं है। वहीं भारत में बैठकर एक यूट्यूबर चुनावों के मध्य सरकार के विरुद्ध करोड़ों व्यूज वाले वीडियोस बनाता है, ईवीएम में धांधली की झूठी खबरें शेयर करता है जिससे एक्चुअली में हिंसा भड़क सकती है। सरकार को फासिस्ट कहता है, पर ये सो कॉल्ड फासिस्ट सरकार उसे टच तक नहीं करती है। ये व्यक्ति जानता है कि सरकार उसे टच भी नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस एक इकोसिस्टम को साथ लेकर कार्य करती है। एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसे कोई नहीं जानता, वो ईवीएम के हैक होने की खबरें उड़ाता है, वो भी फोन पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से। पूरा ये जो ब्लर्ड आउट थोड़ा सा ब्लर था ना, इट वाज द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय दैट न्यूज़पेपर जिसने ये झूठी खबर छापी थी कि फ़ोन से ईवीएम को अनलॉक कर लेते थे। तो दे गिव आउट दैट क्लैरिफिकेशन द नेक्स्ट डे और द सब्सिक्वेंट डेज कि ऐसा कुछ नहीं था, इट वाज फेक न्यूज़ एंड दे वर रिट्रैक्टिंग इट। पूरा इकोसिस्टम उसे फैलाता है। राहुल गांधी के हैंडल समेत इसे फैलाया जाता है और ये खबर एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है, मिड डे तक में छपती है। जब तक ये बात बाहर आती है कि ये फेक न्यूज़ है, तब तक ये झूठ पूरे विश्व में घूम चुकी होती है। अब इसे रिवर्स करना असंभव था क्योंकि बीजेपी के पास इस सत्य को फैलाने के लिए उस लेवल का इकोसिस्टम ही नहीं है। वो द कश्मीर फाइल्स में एक लाइन है ना कि जब तक सच चप्पल पहन रहा होता है तब तक झूठ दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ जाता है। आज बीजेपी अजीत भारती के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यह आवश्यक है क्योंकि कई राज्य चलाने वाली राजनीतिक पार्टी से यदि लोहा लेना है तो उससे बड़ा लोहा आपके साथ होना चाहिए, अन्यथा कोर्ट सजा दे या ना दे, प्रोसेस सजा देने वाला बना दिया जाता है। भारत दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी है ना, उतनी ही सामान्य डेमोक्रेसी है, पर बीजेपी को यदि सत्य को स्थापित करना है तो उसे उस इकोसिस्टम का निर्माण अनिवार्य हो जाता है जो नैरेटिव बनाने की क्षमता रखता है और ये कार्य बीजेपी को ही करना है, अन्यथा इस वैचारिक लड़ाई में हार निश्चित है। आप इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से रख सकते हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। स्क्रीन पर आप लिंक वगैरह देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर देख रहे इस दूसरे एपिसोड को अवश्य देखें जो आपको बताएगा भारत में डिक्टेटरशिप का सत्य क्या है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। Very nice video. This was the first time I have reacted to a video from AKTK and
it was very well researched and very good editing was done by them as well. जिस तरह से जो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह आ रहे थे, it was very good. Anyway, yes, I agree with them कि जिस तरह से लेफ्ट अपनी इकोसिस्टम को साथ में लेके चलता है, ऐसा राइट नहीं करता है. बिकॉज राइट थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी में भी घुसा बैठा होता है कि यस, जो हमारे पास आइडियोलॉजी है, व्हाट वी आर सेलिंग, पीपल आर बाइंग. सो वी डोंट नीड ऑल ऑफ दिस नए नए चोचले कि यूट्यूबर्स को भी लेके चलो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को भी लेके चलो, all of that. So, and I think वो वहाँ पे थोड़ा मात खा रहे हैं. You have to take them with them, because if people are putting their lives, their freedom at risk, then for you, then you should also at least stand up for what is right. If you don't want to take sides. अब जैसे ध्रुव है, ध्रुव की फेक न्यूज़ को भी other channels, other left के लोग, इस लेफ्ट में I'm including Congress as well, वो लोग propagate कर देते हैं even if they are lies. So the least BJP can do is at least stand up with the people who are speaking truth. So this is all the take from that video, and there were very historical points as well, which I hope you guys enjoyed, and they were also a very good learning factor for me, especially the whole PV Narasimha Rao incident. Anyway, I'll meet you guys in the next one. Already video बहुत लंबा हो गया है. Thank you.